when you put these seeds into the soil and they get all the favorable condition, they open up, that is, they germinate and give rise to a baby plant. Let's talk about the transfer of pollen from the anther to the stigma ऑफ द कार्पेल. कई सारी सेल्स बनेंगी, अब उसे कहा जाएगा एम्ब्रियो. तो फॉर्म कहाँ हो रहा है? यहीं इसी स्ट्रक्चर में, और इस स्ट्रक्चर को ही तो एम्ब्रियो सेक कहते हैं. तो ये Hello students, welcome to Alan Digital. Students, you might have heard a phrase that a tree is known by its fruit. That means fruit could be really important for the existence of a tree or a plant. Definitely. We know what flowers are, fruits are, seeds are. But still there are so many questions left unheard, and we are going to decode each one of them in the topic that is journey to seed formation. Once seeds are formed, we know what happens. When you put these seeds into the soil and they get all the favorable condition, they open up, that is, they germinate and give rise to a baby plant. But ye journey, seed formation ki, this is what we have to learn in the topic. Okay students, so let's continue. This is the mustard field, and in this mustard field there are so many mustard plants. Okay, and mustard plant mein kai sare flowers bhi hain. This is the flower, but why we are exclusively talking about flower? Because this is the reproductive organ of a plant. ये वो structure है जो reproduction की process में involve होती है और सीड का फॉर्मेशन होता है. Here you can see certain green structures and brightly colored petals too. ये जो green structure हैं, these are sepals. The whorl of sepal is known as calyx. This is petal, and the whorl of petal is known as corolla. Okay, but they are not that important because they are not directly involved in the production of seeds. Okay, so what is important? The male reproductive structure and the female reproductive structure. What is male reproductive structure? That is stamen. Stamen is divided into two parts, the knob part, anther, and the stalk part, which is filament. So anther and filament together known as stamen. So this is stamen. Okay. ये anther को अगर cut open किया जाए, we will observe there are 4 pollen sac which are completely filled with pollen. They are filled with pollen. Whenever you touch a flower, you have observed एक yellow powder हाथों में आ जाता है. वो येलो पाउडर क्या है? वो पॉलन है. ओके स्टूडेंट्स, सो पॉलन की बात करते हैं. व्हाट इज पॉलन? दिस इज व्हाट पॉलन इज. पॉलन में फर्दर 2 स्ट्रक्चर्स आप ऑब्जर्व कर सकते हो. इनमें से एक स्ट्रक्चर तो पॉलन ट्यूब फॉर्म करती है और एक स्ट्रक्चर मेल गैमीट्स फॉर्म करती है. Gametes are the reproductive structures. They are the reproductive cells, and when male gamete and female gamete they fuse, then they form the zygote, which will further divide and forms the embryo that is there in the seed. Okay students, so seed formation के लिए fertilization होना जरूरी है. We will learn about that. And fertilization के लिए gametes का होना जरूरी है. तो male gamete जो form करेगी वो structure किस में पाई जाती है? pollen में. कहाँ पाई जा रही है? पॉलन में. और फीमेल गैमीट की अगर बात की जाए तो वो कहाँ पाई जाएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में. दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दैट इज पिस्टल और कार्पेल. पिस्टल और कार्पेल, द टॉप पार्ट ऑफ पिस्टल और कार्पेल इज सिग्मा, elongated पार्ट इज स्टाइल, और ये जो बेस में ये स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज ओवरी. ये ओवरी है. ओवरी में आपको फर्दर सेक्शंस दिख रहे हैं, फर्दर लोब्स दिख रहे हैं. देयर कैन बी 1 लोब, देयर कैन बी मोर देन 1 लोब्स. दिस इज नोन एज ओव्यूल. दिस इज एक्चुअली द ओव्यूल और ओव्यूल्स. ओके स्टूडेंट्स, दीज आर ओव्यूल्स. ओव्यूल में अगर ध्यान से हम ऑब्जर्व करें तो ये स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज एम्ब्रियो सेक. And the most important part, as I have told you, female reproductive structure is important. Why it is important? Because it bears the female gamete. And here is the female gamete. This is the egg cell, also known as female gamete. Okay students? So female gamete कहाँ है? Embryo sac में. Embryo sac कहाँ है? Ovule में. और ovule कहाँ है? Ovary में. Male gamete forming cell कहाँ है? Pollen में. Pollen कहाँ है? Anther में. Okay, और anther क्या है? A part of stamen. So now we know why male and female reproductive structures are important. Now let's talk about the transfer of pollen from the anther to the stigma of the carpel. That is known as pollination. So now we have to learn about कि ये male gamete का transfer कैसे होने वाला है, formation कैसे होने वाला है. तो यहाँ पर pollen का transfer होगा from anther to the stigma of the carpel. This is known as pollination. Anther का transfer, okay, anther पे available pollen का transfer onto the stigma of the carpel. This is known as pollination.
ये जो ट्रांसफर हुआ है ये एक फ्लावर में भी हो सकता है, एक ही प्लांट के सेवरल फ्लावर्स में भी हो सकता है, और एक प्लांट और दूसरे प्लांट के फ्लावर्स के बीच में भी हो सकता है। तो व्हेन जब पॉलन का ट्रांसफर एंथर से सिग्मा पर हो रहा है और प्लांट चेंज नहीं हुआ, चाहे एक प्लांट के एक ही फ्लावर में हो, चाहे एक प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स में हो जाए, तो यहाँ पर इसे कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम हियर टू हियर इन अ फ्लावर ओनली, सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ से पॉलन का ट्रांसफर हो गया दूसरे फ्लावर पर, बट प्लांट वही है, इसे भी सेल्फ पॉलिनेशन ही कहा जाता है। प्लांट चेंज नहीं हुआ, प्लांट चेंज नहीं होगा। अगर प्लांट चेंज हो गया, वी नो मस्टर्ड फील्ड की बात कर रहे थे हम, तो कितने सारे प्लांट्स हैं, अगर पॉलन का ट्रांसफर एक प्लांट से किसी और प्लांट पर हो गया, ट्रांसफर इस तरीके से हुआ है कि प्लांट चेंज हो गया। प्लांट्स आर डिफरेंट, सो व्हेन प्लांट्स आर डिफरेंट, ओके, दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में हुआ है, ओके, बट स्पीशी वही होना चाहिए, मस्टर्ड प्लांट ही होना चाहिए, वीट है तो वीट प्लांट ही होना चाहिए, ओके। सो डिफरेंट प्लांट्स हैं, तो इसे कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन, दिस इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन, जहाँ पर प्लांट चेंज हो जाए, ओके स्टूडेंट्स। तो ट्रांसफर हुआ पॉलन का फ्रॉम एंथर टू सिग्मा, दिस इज नोन एज पॉलिनेशन। ये जो प्रोसेस हो रही है इसमें कई एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, विंड की हेल्प से भी हो सकता है, वाटर की हेल्प से भी होता है, इंसेक्ट की हेल्प से भी होता है, बैट की हेल्प से भी हो सकता है, एज वेल एज बर्ड टू। सो दीज आर द एजेंसीज इन्वॉल्व्ड इन द पॉलिनेशन प्रोसेस। नाउ व्हाट हैपेंड, पॉलन ट्रांसफर, पॉलन ट्रांसफर हो गया, किसने रिसीव करा, सिग्मा ने। लेट्स लर्न अबाउट दैट नाउ। सो पॉलन का ट्रांसफर हुआ, सिग्मा ने रिसीव करा, उस पर स्टिक कर गया। सिग्मा में थोड़े वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, जिसको पॉलन ने अब्सॉर्ब कर लिया, एंड नाउ व्हाट विल हैपन, पॉलन विल जर्मिनेट। पॉलन जर्मिनेट करेगा तो फॉर्मेशन किसका होगा, पॉलन ट्यूब का। तो यहाँ पर पॉलन ट्यूब फॉर्म हो रही है, ये सेल इसे लीड करती जा रही है। पॉलन ट्यूब फॉर्म करने वाली सेल किसमें थी, पॉलन में, और जो दूसरी सेल थी उसने डिवाइड किया और फॉर्म कर दिया दो मेल गैमीट्स को। तो पॉलन में था एक सेल जो ट्यूब फॉर्म करेगा, और दूसरी सेल जिसने डिवाइड करके मेल गैमीट्स फॉर्म कर दिए। अब ये प्रोसेस जो हो रहा है ये इसी डायरेक्शन में क्यों हो रहा है, वहाँ पर जो ये ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है ये इसी डायरेक्शन में, इस ओपनिंग की तरफ ही क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर कुछ केमिकल सिक्रीट किए जाते हैं ताकि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन इसी डायरेक्शन में हो। इसे कहा जाता है कीमोट्रॉफिज्म। This is chemotrophism. Now students, male gamete in this pollen tube, they are there in the pollen tube, उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा इस ओपनिंग की तरफ। ये क्या है, ये एम्ब्रियो सैक, ये रहा एम्ब्रियो सैक। मेल गैमीट यहाँ रिलीज कर दिए जाएंगे और इनमें से एक जाकर फ्यूज कर जाएगा एग सेल से। सो व्हेन एग सेल fuses with the male gamete, that means female gamete fuses with the male gamete, जो पहली स्ट्रक्चर बनती है, जो पहली सेल बनती है, उसे जाइगोट कहते हैं। इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं और इसी प्रोसेस को सिनगैमी भी कहा जाता है। व्हाट इज दिस, दिस इज सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन। सो सिनगैमी हुआ, दो गैमीट्स का फ्यूजन हुआ और जो पहली स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है उसे जाइगोट कहा जाता है, जो पहली सेल फॉर्म हुई है उसे जाइगोट कहा जाता है। अब वो एक सेल डिवाइड करेगी, कई सारी सेल्स बनेंगी, अब उसे कहा जाएगा एम्ब्रियो। तो वो फॉर्म कहाँ हो रहा है, यहीं इसी स्ट्रक्चर में, और इस स्ट्रक्चर को ही तो एम्ब्रियो सेक कहते हैं। तो ये एम्ब्रियो सेक में एम्ब्रियो पाया जाएगा, ओके, यहाँ पर एम्ब्रियो पाया जाएगा। और ये एम्ब्रियो सेक था किसमें, ओव्यूल में। ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सीड। ये जो ओव्यूल है यही ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सीड, और इस सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो, जो आगे जाकर बेबी प्लांट फॉर्म करता है व्हेन सीड जर्मिनेट्स, ओके। और सीड यूजुअली पाए कहाँ जाते हैं, फ्रूट के अंदर। सीड्स कहाँ पाए जाते हैं, फ्रूट के अंदर। तो वो फ्रूट किसने फॉर्म किया, वो फ्रूट फॉर्म किया है ओवरी ने। फ्रूट किसने फॉर्म किया है, इस ओवरी ने, ओके स्टूडेंट्स। ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट हो गई फ्रूट में, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट हो गया सीड में, और सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेबी प्लांट और द न्यू प्लांट स्टूडेंट्स, ओके। सो रिमेनिंग प्लांट विल शेड ऑफ, ओके। एंड इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रह जाएगा कि फ्रूट फॉर्म हो गया, उसी फ्लावर से अब फ्रूट फॉर्म हो गया। ओवरी ने बनाया फ्रूट। फ्रूट कहाँ पर पाया जा रहा है, वो फ्रूट पाया जा रहा है उसी पे जहाँ पर फ्लावर था, ठीक है। तो फ्रूट, एंड फ्रूट के अंदर है सीड जो कि बना है ओव्यूल से, और सीड के अंदर है एम्ब्रियो। तो दिस इज द फ्रूट एंड इट बियर्स सो मेनी सीड्स, एंड अब यही सीड व्हेन जर्मिनेट,
दे गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. तो इनका डिस्पर्सल होगा एंड डिस्पर्सल होने के बाद दे विल बी रिसीव्ड बाय अनदर पार्ट. ओके, एंड वहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस हुई तो वही सीड जर्मिनेट करेगा और फॉर्म कर देगा न्यू प्लांट का. दिस इज व्हाट द जर्नी ऑफ सीड फॉर्मेशन. दैट इज हाउ सीड्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू plant. I hope you have learned a lot. Thank you so much.